ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஸ்ரீபூ நீலா சமேத ஸ்ரீ சீனிவாச பரபிரம்மனே நமக. எந்தை தந்தை தந்தை தம் தம் மூத்தப்பன் ஏழ்படி கால் தொடங்கி வந்து வழி வழி ஆட்செய்கின்றோம். திருவோணத் திருவிழவில் அந்தியம் போதில் அறிவுருவாகி அரியை அழித்தவனை பந்தனைத் தீர பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டென்று பாடுதுமே. பெரியாழ்வாரின் அழகான பாசுரம். அறிவுருவாகி அரியை அழித்தவனே என்று நிருசிம்ம அவதாரத்தை இந்த பாசுரத்தில் போற்றி பாடுகிறார். அந்த ஸ்ரீஹரியே இதோ இந்த கலியுகத்தில் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானாக வெங்கட நரசிம்மனாக இந்த திருமலையில் எழுந்தருளியுள்ளார். திருவோணத் திருவிழவில் என்று சொன்னது போல எம்பெருமான் அவதரித்த புரட்டாசி திருவோணத்தை முன்னிட்டு நடைபெறும் வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்தில் 3ஆம் நாளான இன்று காலை அந்த எம்பெருமான் யோக நரசிம்மர் திருக்கோலத்தில் சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளி நான்மாட வீதிகளிலும் உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். அந்த உலா வந்த களைப்பு தீர இதோ இப்போது எம்பெருமானுக்கும் திருத்தேவிகளுக்கும் ஸ்நபன திருமஞ்சனம் நடைபெறவுள்ளது. இந்த திருக்கைங்கரியத்தை தரிசித்து எம்பெருமானின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்களை வரவேற்பது டி.கே. லட்சுமி கிருஷ்ண சுவாமி. பக்தர்களே, உலா வந்த களைப்பு தீர என்று சொன்னேன். பரபிரம்மமான எம்பெருமானுக்கு ஏது களைப்பு? பசி, தாகம், களைப்பு, பிறப்பு, மூப்பு எல்லாம் நம் போன்ற மனிதர்களுக்கு தானே வரும். அவன் பகவான் அல்லவா? பகத் என்றால் 6 சீரிய குணங்கள்: ஞானம், பலம், ஐஸ்வர்யம், வீரியம், சக்தி, தேஜஸ். இந்த 6 குணங்களும் நிரம்ப பெற்றதால் தானே அவன் பகவான். ஆனால் பகவான் சௌலபியன். அவன் தன் பக்தர்களுக்கு கைங்கரிய பிராப்தி தருவதற்காகவே இந்த திருமஞ்சனத்தை நடத்தி கொள்கிறார். 7 ஜென்ம புண்ணியங்கள் செய்திருந்தால் மட்டுமே இந்த கலியுக வரதனுக்கு திருமஞ்சன கைங்கரியம் பண்ணும்படியான பாக்கியம் கிடைக்கும். இதை நம்மால் செய்ய முடியவில்லையே என்கிற ஆதங்கம் வேண்டாம். எம்பெருமானின் கோவிந்த நாமத்தை நாவால் ஜபித்துக்கொண்டு வேத மந்திரங்களை காதுகளால் கேட்டுக்கொண்டு இந்த பரவசமூட்டும் திருமஞ்சனத்தை தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறோமே, இது கூட ஒரு கைங்கரியம்தான். இதைத்தான் குலசேகர ஆழ்வார் தனது முகுந்த மாலையில் வாராய் நாக்கே கேசவனை சோஸ்திரம் செய், நெஞ்சே முராசுரனை கொன்ற கண்ணனை தியானம் செய், காதுகளே நம்மை ஒரு காலம் நழுவ விடாதவனான கண்ணனுடைய புகழை கேளுங்கள், கால்களே எம்பெருமான் கோவிலுக்குச் செல்வங், கண்ணே கண்ணனை கண்டு அனுபவியுங்கள், மூக்கே முகுந்தனுடைய திருவடிகளில் துளசியை நகரு, கைகளே திருமாலை ஆராதியுங்கள், தலையே எம்பெருமானை வணங்கு என்று நமது சரீரத்தின் ஒவ்வொரு அங்கங்களையும் குறிப்பிட்டு பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ண சொன்னார். அதை இப்போது செய்வதற்கு எந்த தடையும் இல்லை அல்லவா? குரங்குகள் மலையை தூக்க குளித்துத்தாம் புரண்டுட்டோடி தரங்க நீர் அடைக்கலுற்ற சலமிலா அணிலும் போலேன் என்றார் தொண்டடிப்படி ஆழ்வார். அந்த அணிலைப் போன்றவர்கள்தான் நாம். நம்மால் முடிந்த இந்த கைங்கரியத்தை செய்வோமே. ஆகவேதான் நாம் இருந்த இடத்திலிருந்தே இந்த கைங்கரியத்தை செய்ய வழிவகை செய்துள்ளார்கள் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தினர். அவர்களுக்கும் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்துக்கும் நாம் எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் போதாதுதான். நம் வாழ்வு வளமாக இருக்க எம்பெருமான்களையும் தேவிகளையும் திருமஞ்சன மாட்டி தூப தீப ஆராதனை செய்து கற்பூர மங்கள ஹாரத்தி காட்டி உபச்சாரங்கள் செய்ய அதோ தயாராகி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. எம்பெருமானோ க்ஷீராப்திநாதன், அந்த தாயாரோ பார்க்கடலிலேயே உதயமானவள். அதனால் பால், தயிர், தேன், இளநீர், சந்தனம், மஞ்சள் ஆகிய சீத்தள பொருட்களை கொண்டு இந்த திருமஞ்சன வைபவம் நடைபெற இருக்கிறது. பக்தர்களே, இந்த திருமஞ்சன வைபவத்தை பற்றி சொல்லும்போது இதில் 4 விதமான வேதங்களும் அடங்கி உள்ளவாம். பால் ரிக்வேதம், தயிர் யஜுர்வேதம், தேன் சாமவேதம், இளநீர் அதர்வன வேதம். ஆகவேதான் திருமஞ்சனம் நடைபெறும் போது பின்னால் வேத மந்திரங்கள் ஒலிப்பதையும் நாம் கேட்டிருக்கிறோம் அல்லவா? ஆகவே அந்த வேத மந்திரங்களின் ஒலிகளோடு இப்போது நாம் இந்த திருமஞ்சன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். பக்தர்களே, அதோ முதலில் அதற்கு முன்பாக கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம்,
அதோ பின்பு தூப தீப ஹாரத்தி காட்டி இதோ உபச்சாரங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, வாசனை மிகுந்த சாம்பிராணியை பொடியாக்கி அதை தணலில் இட்டால் அதிலிருந்து கமகமகமென்று வாசனை வரும். அந்த நறுமணம் மிக்க புகையை இப்போது எம்பெருமானுக்கும் தேவிகளுக்கும் நீராடிய பின்னர் அவர்களுக்கு அர்ப்பிக்க இருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஷோடச கலாநிதிக்கு ஷோடச உபச்சாரமுலு என்று கீர்த்தித்தார் அன்னமையா. அதன்படி எம்பெருமான்களுக்கு அர்க்யம், பாத்தியம், ஆச்சமனியம், அத்துடன் சத்திர, சாமர, விசிறி, கண்ணாடி காட்டுதல் போன்ற அத்தனை வகையான உபச்சாரங்களையும் செய்வதற்கு அதோ அர்ச்சக சுவாமி தயாராகி கொண்டிருக்கிறார். நாமும் எம்பெருமானை இந்த திரையின் வழியாக தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, எம்பெருமானை நாம் அனுபவிக்க நமக்கு இருக்க வேண்டிய முக்கியமான குணங்கள் 3: பரபக்தி, பரஜானம், பரம்பக்தி. எம்பெருமானை அனுபவிக்க வேண்டும் என்கிற ஆவல் பரபக்தி, அவரை அடைய முற்படுவது பரஜானம், அதன் பின்பு மேலும் 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 இடைவிடாது அனுபவிக்க வேண்டும் என்பது பரமபக்தி. அப்படிப்பட்ட பக்தியை தான் எம்பெருமான் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறார். பக்தர்களே, இப்படிப்பட்ட பக்தி இருக்குமானால் நமக்கு நாம் சாப்பிடும் அந்த உணவே பிரசாதமாகி விடுமாம், அந்த பருகும் தண்ணீரே தீர்த்தமாகி விடுமாம், நாம் செய்யும் பிரயாணமே தீர்த்த யாத்திரையாகி விடுமாம், நாம் பாடும் பாட்டே கீர்த்தனமாகி விடுமாம். இதே போல ஆக மொத்தத்தில் எம்பெருமானுக்கு நாம் செய்கிறது அத்தனையுமே ஏன் நம் மனசே கோவிலாகிவிடும். மொத்தத்தில் சாதாரண மனிதன் பக்தனாகி விடுகிறான். ஆகவேதான் பக்தி என்பது எம்பெருமானை அனுபவிக்க வேண்டிய ஒன்று என்கிறார்கள் ஆழ்வார்கள். அவருடைய திருநாமங்களை எப்போதும் பஜித்துக் கொண்டிருப்பது, அவருடைய திருக்கல்யாண குணங்களை சொல்லி அனுபவிப்பது, அவரது திருமேனி அழகை வர்ணித்து பாசுரங்களை போற்றுவது, இப்படியாக ரிஷி முனிவர்களும் ஆழ்வார்களும் ஆச்சாரியர்களும் கவிதா சிரோமணிகளும் எம்பெருமானை அனுபவித்திருக்கிறார்கள். இந்த கலியுகத்தில் பக்தர்களாகிய நாம் அவரை அனுபவிப்பதற்கு எளிய ஒரே வழி அவருடைய நாமாவளியை சொல்வதுதான். 1000 நாமம் கொண்ட அவரை நாமறிந்த ஒரே நாமமான கோவிந்தா 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 என்று உரக்கச் சொல்லுவோம். நம்மை காக்க ஓடோடி வருவார் அந்த பகவான். ஆதிமூலமே என்று அழைத்த அந்த யானையை முதலையின் வாயிலிருந்து மீட்க பறந்தோடி வந்த கஜேந்திர வரதனும் இந்த மலையப்ப சுவாமியே. அன்று கௌரவ சபையில் கோவிந்தா என்று கதறிய அந்த பாஞ்சாலிக்கு வஸ்திரமழை பொழிந்தவனும் நமது இந்த கண்ணனே. அந்த துவாபரயுக கண்ணனே இதோ இந்த கலியுகத்தில் திருவேங்கடத்தை எம்பெருமானாக திருவேங்கடமலை மீது எழுந்தருளியுள்ளார். அது மட்டும் அல்ல, தன்னுடைய திருக்கைகளால் தனது பாதங்களை காட்டி நம்மையெல்லாம் வந்து அவரிடம் சரணமடைய சொல்கிறார். அர்ச்சாவதேர ரூபேண லோகேஸ்மின் சதுரானன அவதாரம் கரிஷ்யாமி ஹ்ரியா லக்ஷ்மியா சமன்விதக. அதாவது பிரார்த்தியுடன் கூடிய சீமன் நாராயணன் இந்த பூலோகத்தில் அர்ச்சாரூபியாக அவதாரம் செய்வதாகவும், அந்த அவதார ஸ்வரூபங்களை விக்கிரகங்களாக பிரதிஷ்டை பண்ணி மந்திரங்களாலும் பக்தியினாலும் ஆவாகனம் பண்ணினால் பக்தவத்சலனான அந்த எம்பெருமான் அந்த பக்திக்கு கட்டுப்பட்டு அந்த விக்கிரகங்களில் சாநித்தியமாகிறாராம். அவ்வாறு அர்ச்சாமூர்த்தியாய் ஸ்ரீமன் நாராயணன் எழுந்தருளியிருக்கும் திவ்ய தேசங்கள் எவ்வளவோ. அதில் ஸ்வயம்பு, அதாவது எம்பெருமான் தானாக தோன்றிய சேத்திரங்கள் 8: ஸ்ரீரங்கம், ஸ்ரீமூஷ்ணம், திருமலை, சாலக்கிராமம், நைமிசாரண்யம், தோத்தாத்ரி, புஷ்கரம், பத்ரிகாசலம் ஆகியவையாகும். அவற்றில் அதி முக்கியமானவை என்பது ஸ்ரீரங்கம் கோவில் எனப்படும் ஸ்ரீரங்கமும் திருமலை எனும் வெங்கடகிரியும் தான். விண்ணகரம் வெக்கா விரிதிரை நீர் வேங்கடம் மண்ணகரம் மாமாட வேளுக்கை மண்ணகத்த தென்குடந்தை தேவர் திருவங்கரங்கம் தென்கோட்டி தன்குடந்தை நீரேற்றான் தாழ்வு என்று பேயாழ்வார் தன்னுடைய பாசுரத்தில் முதல் வரியிலேயே திருவங்கடத்தை சொல்லி, நமது திருவேங்கடத்தை சொல்லி கலியுக வைகுந்தமான திருவேங்கடத்திற்கு ஏற்றம் கொடுத்திருக்கிறார் அல்லவா. பூலோக வைகுந்தம்
திருவரங்கம், கலியுக வைகுந்தம் நமது திருவேங்கடமலை. அதோ எம்பெருமானுக்கு தூபஹாரத்தி காட்டி உபச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, எம்பெருமானுக்கு காட்டப்படும் ஒவ்வொரு உபச்சாரத்திற்கும் ஒரு விதமான அர்த்தம் உண்டாம். இதை அடுத்து இப்போது காட்டப்படுவது தீபஹாரத்தி. இதற்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? தீபத்தின் தன்மை என்ன? இருளையெல்லாம் விரட்டி ஒளியை கொடுப்பது. இங்கே எம்பெருமான் பக்தர்களாகிய நம்மனதில் உள்ள அந்த அக்ஞான இருளை விரட்டுவதால் இங்கே எம்பெருமானே ஜோதி ஸ்வரூபம். அந்த ஜோதி ஸ்வரூபனுக்கு இப்போது தீபத்தால் ஹாரத்தி நடைபெற்றது. இதை அடுத்து இனி திருமஞ்சன கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. பக்தர்களே, இந்த ஸ்நபன திருமஞ்சனத்திற்கும் வெறும் நாளில் நடைபெறும் திருமஞ்சனத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று கேட்போமானால், இந்த ஸ்நபன திருமஞ்சனத்தின் போது ஒரு அபிஷேகத்தின் போதும் எம்பெருமானுக்கு விதவிதமான அலங்காரங்கள், விதவிதமான புஷ்பமாலைகள் சமர்ப்பிக்கப்படும். எவ்வளவு அழகான அலங்காரம் பாருங்கள். இந்த அலங்காரத்துக்கு பிறகு கற்பூர ஹாரத்தி காட்டிய பின் இந்த அலங்காரம் மாற்றி பின்பு எம்பெருமானுக்கு திருமஞ்சனம் செய்யப்பட்டு திரும்பி இன்னொரு அலங்காரம் செய்யப்படும். இப்போது நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது முத்தாலான அலங்காரம். இன்றிரவு எம்பெருமான் முத்துப்பந்தல் வாகனத்தில் எழுந்தருளி நம்மையெல்லாம் கடாட்சிக்க உள்ளார். அதற்கு முன்னோடியாக இந்த திருமஞ்சன வைபவத்தில் கூட எம்பெருமான் அந்த முத்தாலான அந்த அங்கி, அந்த அழகான அணிகலன்களை அணிந்து கொண்டு நமக்கெல்லாம் தரிசனம் தருகிறார். பாருங்கள், இரவை விட பகல் முந்திக் கொண்டது. ஆகவேதான் இரவில் வரப்போகும் அந்த அலங்காரத்தை இப்போதே நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எம்பெருமானுக்கு ஷோடச உபச்சாரங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பக்தர்களே, சரணாகதி அதுதான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்தின் கோட்பாடு. நின்னருளான் கதியின்றி மற்றொன்றில்லேன், நெடுங்காலம் பிழை செய்த நிலை கழிந்தேன், உன்னருளுக்கினிதான நிலைவுகந்தேன், உன்சரணே சரணமெனும் துணிவு பூண்டேன், மண்ணிருளாய் நின்ற நிலை எனக்கு தீர்த்து, வானவர்தம் வாழ்ச்சி தர வரித்தேன் உன்னை, இன்னருளால் இனி எனக்கோர் பரம் ஏற்றாமல் என் திருமால் அடைக்கலங்கொள் என்னை நீயே. அமிர்த சுவாதினியில் சுவாமி தேசிகன் இந்த பரிபூர்ண சரணாகதியை பற்றி அத்தனை அழகாக கூறியிருக்கிறார். எப்படி நாம் எம்பெருமானை சரணமடைய வேண்டும் என்பதை அவர் நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறார். அந்த சரணாகதி கோட்பாடு இப்போது எம்பெருமானுக்கு காட்டப்படுவது சத்திரம். சத்திரம் என்றால் அழகான குடை. சரணாகதி தத்துவம் பரிபூர்ணமாக நிறைந்த மகா காவியமே ஸ்ரீமத் ராமாயணம் தானே. இந்த சரணாகதி தத்துவத்தை, அந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தின் இரகசியார்த்தங்களை அறிந்து கொள்ளவே ஸ்ரீ பகவத் ராமானுஜர் திருமலையின் அடிவாரத்தில் தனது மாத்தூலரான பெரிய திருமலை நம்பிகளிடம் அந்த பிரபத்தி தத்துவத்தை கேட்டறிந்தாராம். பிரபத்தி என்பதே பரிபூர்ண சரணாகதி என்பார்கள். பக்தர்களே, எம்பெருமானுக்கு நான் சொன்னது போல சத்திரம், சாமரம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. எம்பெருமான் சம்பந்தமான விஷயங்கள் அனைத்தையும் வேதங்களும் உபனிஷத்தங்களும் நமக்கு தந்திருக்கின்றன. ஆனால் அவைகள் நம் போன்ற பாமரர்களுக்கு புரியுமா? இதனால்தான் பெரியோர்கள் இதை நாரிகேள பாகம் என்பார்கள். அதாவது, ஒரு தேங்காயை நம்மால் அப்படியே சாப்பிட முடியுமா? உடைக்க வேண்டும், துருவ வேண்டும், அதன் பின்புதான் சாப்பிட முடியும். இதை போன்றவைதான் வேதங்கள், உபனிஷத்துகள். ஒரு ஆச்சாரியனை கொண்டுதான் இவைகளின் அர்த்தத்தை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். அடுத்தது கதலி பாகம். அதாவது, வாழைப்பழத்தை சாப்பிடும் போது கடினம் இல்லை. ஆனால் முதலில் அதன் தோலை உரிக்க வேண்டும், பிறகு பழத்தை சாப்பிட்டு விடலாம். அதை போன்றவைதான் காவியங்களும் புராணங்களும். கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு ஊன்றி படித்தால் புரிந்து கொண்டு விடலாம். மூன்றாவது என்ன தெரியுமா? திராட்சா பாகம். திராட்சை பழத்தை அப்படியே வாயில் போட்டு விழுங்கி விடலாம் அல்லவா?
மிகவும் சுலபமானது. இதைப் போன்றதுதான் ஆழ்வார் பாசுரங்களும் கவிகளின் பக்தி பாடல்களும். நமக்கு இவற்றை படிக்கும் போதே அந்த எம்பெருமானின் பெருமைகளை நாம் உணர்ந்து விடலாம். ஆகவாதான் காசினியில் நாம் வாழ கலியுகத்தை தோன்றிய சான்றோர்களான ஆழ்வார்கள் 4000 திவ்ய பிரபந்தம் என்கிற அந்த பிரபந்தங்களை நமக்கு கொடுத்தார்கள். அவர் அதை தமிழ் வேதம் என்று சொல்வதுண்டு. அவர்களைப் போலவே திருவேங்கடவனை பரம்பொருளாக கொண்டு பக்தி பாடல்களை புனைந்தார் தாளப்பாக்க அன்னமையா. ஸ்ரீராமனை தன்னை ஆட்கொள்ளும் பரந்தநாமனாக கொண்டு பக்தி சுவை சொட்ட சொட்ட பாடல்கள் இயற்றினார் தியாகராஜ சுவாமிகள். வினரோ பாக்யமு விஷ்ணு கதா. திருவேங்கடனின் புகழை காதார கேட்டுக்கொண்டே இருந்தால் அதுவே பரம புண்ணியம் என்றார் அன்னமையா. త్యాగరాజ స్వామియో நீ மகிமல வினக்கா எப்புடு ராஜபதமுலு ஐத்தே ஐயமு என்று உன் பெருமைகளை நான் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தால் அதுவல்லவா எனக்கு ராஜயோகம் என்கிறார். பக்தர்களே, இப்போது நாம் அந்த எம்பெருமானை கண்களால் தரிசித்துக் கொண்டே, செவிகளால் அவரது பெருமைகளை கேட்டுக்கொண்டே, அவரது நாமாவளியை வாயார சொல்லிக்கொண்டு மனதால் அவரை நினைத்து கொண்டிருக்கிறோமே, இதுவும் ஒரு பக்தியின் வெளிப்பாடு. கோவிந்தா 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 என்கிற திருநாமம் இந்த திருமலை எங்கும் ஒலிக்கிறதே, அது அந்த பக்தர்களின் பக்தியின் வெளிப்பாடுதான். செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே, நெடியானே வெங்கடவா, நின் கோயில் வாசல் அடியாரும் வானவரும் அரம்பயரும் கிடந்தியங்கும் படியாய்க் கிடந்துன் பவளவாய்க் காண்பேனே என்று குலசேகர ஆழ்வார் எம்பெருமான் சன்னதியில் படியாய்க் கிடக்கும் பாக்கியத்தை வேண்டினார். அன்னமையாவோ, உன் நாமத்தை பாடிக்கொண்டிருந்தால் எனக்கு வேறு இன்பமே வேண்டாம் என்கிறார். எனக்கு விண்ணப்பங்களோ கோரிக்கைகளோ எதுவுமே இல்லை, உன்னிடம் அது எப்போதோ வந்து சேர்ந்து விட்டது என்கிறார். நீ போதும் என்பதுதானே பரிபூர்ண சரணாகதி. ஸ்ரீ வெங்கடேச சரணவ் சரணம் பிரபத்தியே என்று அந்த சீனிவாசனிடம் நாமும் பிரபத்தி பண்ணுவோம். பத்தி முதலாம் அவற்றில் பதியனக்கு கூடாமல் எத்திசையும் உழன்றோடி இழைத்து விழும் காகம் போல் முக்தி தரும் நகரேழில் முக்கியமாம் கச்சிதனில் அத்திகிரி அருளாளர்க்கு அடைக்கலம் நான் அடைந்தேனே என்று சுவாமி தேசிகன் அடைக்கலம் அடைந்தது போல் நாமும் அடைக்கலம் அடைவோம்.
विश्वतो भृत्वा यदिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगो सर्वम् यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषाणः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तोज्यायागुश्च पूरुषः आदोऽस्य विश्वभूतानि निपादस्यामृतम् दिवि निपादोर्भवुदैत्पुरुषः आदो येह भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामते शने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपूरुषः जातो अत्यनिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुनः यत्पुरुषेण हविषा यज्ञमतन्वता सन्तो अस्यासीराज्यम् कृष्ण इत्मश्शरद्धभिः सप्तास्यासन् परिधयः सप्तसमिधः कृताः देवायज्ञम् तन्वानाः अपघ्नन् पुरुषम् पशुं यज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमकृतः तेन देवा अयजन्त आध्यार्षयश्च ये यज्ञात् सर्वहुतः मृतम् मृगदाज्यम् अशोगस्तागुश्चक्रे वायव्यान् अरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सामानि जज्ञिरे छन्दागंसि जज्ञिरे तस्मात् यजोस्तस्मादजायत तस्मादश्व अजायन्त एके चोभयाततः गावोह जज्ञिरे तस्मात् अजावयः यत्पुरुषं यदधुः यकल्पयन् मुखङ्किमस्य कौ बाहु ओरोपादामुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः गुरु तदस्य यद्वैश्यः ध्यागोषोत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च वायुरजायत नाभ्य आसीदन्तरिक्षम् कृष्णोद्यौ समवर्तत मध्याम् भूमिर्दिशः श्रोत्रात् लोकागौ अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यथास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार प्रविद्वान् प्रतिशश्च तस्रः एवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि कर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकम् महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टाविदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् एवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्त
विश्वतः जायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मणे ब्राह्मणम् जनयन्तः देव अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देव असनुपशे श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टम् मनिषाण मनिषाण सर्वम् मनिषाण ॐ सहस्रशीरुषम् देवम् विश्वाक्षम् विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणम् देवमक्षरम् परमम् प्रभुम् विश्वतः परमन्नित्यम् विश्वन्नारायणगो हरिम् विश्वमेवेदम् पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति मतिम् विश्वस्यात्मेश्वरघोषाश्वतघो शिवमच्युतम् नारायणम् महाज्ञेयम् विश्वात्मानम् परायणम् नारायण परम् ब्रह्म तत्त्वनारायणः परः नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः किञ्चित् जगद्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वम् व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययम् कविगो समुद्रेऽन्तम् विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगो हृदयम् चाप्यधोमुखम् अथो निश्यावितस्यात्तो नाभ्यामुपरि तिष्ठति हृदयम् तद्विजानीयात् विश्वस्यायतनम् महत् अन्ततगोशिलाभिस्तुलम्बत्या कोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुम् सूक्ष्मम् तस्मिन् सर्वम् प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमचरः कविः स्थापयति स्वम् देहमापातदलमस्तगम् तस्य मध्ये वह्निशिखणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थ विद्युल्लेखे बभास्वरा नीवारशोकवत्तन्विपीताभास्यात्तनोपमा तस्य शिखाय मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगो सत्यम् परम् ब्रह्म पुरुषम् कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतम् विरूपाक्षम् विश्वरूपाय वै नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णोर्नुकम् वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजागोऽसि यो अस्य भजतुत्तरगो सधस्थम् विचक्रमाणस्त्रेधोरुगा विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोऽश्न्यप्त्रे स्थो विष्णोऽस्योरसि विष्णो
ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे तदस्य प्रियमभिपाथो अस्य नरो यत्र देवयवो मदन्ति क्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णो पदे परमे मध्व उत्सः तद्विष्णुस्तवते वीर्याय मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु भीक्षयन्ति भुवनानि विश्वा परो मात्रया तनुवावृधाना ते महित्वमन्वश्नुवन्ति उभेते विद्मरजसी पृथिव्या विष्णो देवत्वम् परमस्य वित्से चक्रमे पृथिवीमेष एताम् क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् ध्रुवासो अस्य कीरयोजनासः पुरुक्षितिगो सुजनिमाजकार निर्देवः पृथिवीमेष एताम् विचक्रमे शतर्जसम्महित्वा प्रविष्णुरस्तु तव सस्तवीयान् वेदज्ञस्य स्थविरस्य नाम अतो देव अवन्दुनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदम् विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समोढमस्य भागो सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्य सखा तद्विष्णोः परमम् वदनु सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुंसः समिन्धते विष्णोर्यत्परमम् पदम् हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो ममावह ताम् भावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्याम् हिरण्यम् विन्देयङ्गामश्वम् पुरुषानः अश्वपूर्वाम् रथमध्याम् हस्तिनादप्रमोदिनी यन् देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषता कांसोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकारामार्द्राम् ज्वलन्तीम् तृप्ताम् तर्पयन्ती मे स्थिता पद्मवर्णाम् तामिहोपक्वये श्रियाम् चन्द्राम् प्रभासाम् यशसा ज्वलन्तीम् श्रियल्लोके देवदुष्टामुदाराम् ताम् पद्मिनीमीम् शरणमहम् प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यता त्वाम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तराय च बाह्य अलक्ष्मीः उभैतुमाम् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिम् ददातु मे क्षुत्पिपासामलान् ज्येष्ठमलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिम् च सर्वान् निर्णुत मे गृहात् गन्धद्वारान् दुरादर्शान् नित्यपुष्टान्तरीषिणी ईश्वरीयो सर्वभूतानाम् तामिहोपक्वये
ये श्रियम् मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य मयि श्रीयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूत मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीभव समे गृहे च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रायः करणीयश्चिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम् चन्द्रां हिरण्म भूमिर्भ्रोम्नाद्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थे देव्यदितेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे आयङ्गो पृष्टिरक्रमीतनन्मातरं पुनः विरञ्च प्रयन्त्सुवः गोषद्धाम विराजति वाक्पतङ्गाय जिश्रिये प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्दश्चरति रोचना व्याख्यन्महिषः सुवः यत्त्वा क्रुद्धः परोपमन्युना यदवर्त्या सुकल्पमग्ने तत्तव पुनस्त्वोद्दीपयामसि यत्ते मन्युपरोक्तस्य पृथिवीमनुदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देव वसवश्च समाभरन् मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरी सदने सत्यायने सीता समुद्रवती सावित्रे हनो देवी मह्यये महोधरणी महोध्यधिष्ठा शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणी इन्द्रपत्नी व्यापिनी दुरदरिरिह वायुमती जलशयनी श्रियन्धाराय सत्यं वो परिमेदिनी
परिधत्तङ्गाय विष्णुभक्तिमहीं देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्धियै धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् शृण्वन्ति श्रोणममृतस्य गोपा पुण्यामस्य उपशृणोमि वाचम् महीं देवीं विष्णुभक्तिमजोर्याम् अतिजीमेनागो हविषाय जामः त्रेधा विष्णुरुगाय विचक्रमे दिवं पृथिवीमन्तरिक्षम् तच्छोणैतिश्रव इच्छमान पुण्यज्ञो श्लोकै यजमानाय कृण्वति गृणाहि तवति सवितराधिपत्यैः पयस्पतिरन्तिराशानो अस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्न्यघोरास्येषा न सहसोऽयमनोता बृहस्पतिर्मातरिष्वो तवायुः सन्धुवाना वाता अभिनो गृणन्तु विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्या अस्येषा न जगतो विष्णुपत्नी शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि तं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिशम् रतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावीत तद्भक्तारमावीत् आवीन्मावीत् वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 सहनवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो वाचे याचोदिता याचानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमर्षिभ्यो मन्त्रकृभ्यो मन्त्रपतिभ्यो मामृषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः परा दुर्माहमृषीन् मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन् परादां वैश्वदेवीं वाचमुद्यासगो शिवामदस्तान्युष्टान् देवेभ्यः शर्म मेद्यो शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगत् शर्म चन्द्रस्य सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मा अहमिदमुपस्तरणमुपस्तृ
वरुण उपस्तरणं मे प्रजायै पशूनां भूयादुपस्तरणवः प्रजायै पशूनां भूयासं प्राणापानो मृत्योर्मापातं प्राणापानो मामाहासिष्ठं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगो शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं देवावन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अच्छय्योरावृणीमहे दातै यज्ञाय दातै यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजाम् शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नो वातः पवताम् मातरिष्वा जन्नस्तपतु सूर्यः अहनिशं भवन्तु नः शनो रात्रिः प्रतिधीयताम् यमुषा नो युच्छतु शमादित्यमुदेतु नः शिवानः सन्तमा भव सुमृळीका सरस्वती मातेभ्योमसन्दृशी इडायैवास्पशिवास्तुमद्वा स्तुमन्तो भूयास्मवास्तोश्चित्स्मह्यवास्तु स भूयाद्योऽस्मान् वेष्टियन्त वय विश्वः प्रतिष्ठाति प्रतिष्ठावन्तो भूयास्ममा प्रतिष्ठायाश्चित्स्मह्य प्रतिष्ठस भूया योऽस्मान् वेष्टियञ्च वयन् विष्मः आवातवाहि भेषजं विवातवाहि यद्रपः भगो हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे वाविमौ वातौ वात आसिन्धोर परावतः दक्षं मे अन्य आवातु परान्यो वातु यत्रपः यदतो वादते गृहे वृतस्य निधिर्हितः ततो नो देहि जीवसे ततो नो देहि भेषजम् ततो नो मह आवह वात आवातु भेषजम् शम्भोर्मयो भूर्नो हृदे प्रणआयोगुं हितारिषत् इन्द्रस्य गृहाधिनन्वा प्रपद्ये सगुस्साश्वः सहयन्मे अस्ति तेन भोः प्रपद्ये भुवः प्रपद्ये सुवः प्रपद्ये भोर्भुवः सुवः प्रपद्ये वायुं प्रपद्येनार्तां देवतां प्रपद्ये श्मनमाखनं प्रपद्ये प्रजापतेर्ब्रह्मकोशं ब्रह्म प्रपद्य ॐ प्रपद्ये अन्तरिक्षम् उर्वन्तरम् बृहदग्नयः पर्वताश्च जयावातस्वस्य स्वस्तिमान्तया स्वस्य स्वस्तिमानसानि प्राणापानौ मृत्योर्मापातं प्राणापानौ मामाहाविष्टं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो राजो दधातु युभिरक्तुभिः परिपातमस्मानरिष्येभिरश्विनाथौ भगेभिः
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तमदितिः सिन्धुः पृथिवी उदद्योः शयानश्चित्र आभुवधूते सदा वृधः सखा तया सजिष्ठया ऋता तस्मादत्यो मदाना मगोहिष्ठो मत्सदन्धसः दृढाचिदारुजे वसु अभीडुणः सखीनामविता चरितॄणाम् शतम् भवास्योतिभिः यः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रम् विजमेधऋषयो नाधमानाः अपद्भान्तमोर्निः बोद्धिचक्षुर्ममुभ्यस्मान्निधयेव बद्धान् नो देवीरभीष्टय आपो भव पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः ईशानवर्यण क्षयन्तीश्चरुषणीना अपोयागामि भेषजम् मित्रान आपवोषधयः सन्तु दुर्मित्रा तस्मै भूयादुर्यो द्वेष्टिजम् च भयन् विष्मः आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमोरजस्तस्य भाजयते हनः शतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जनः पृथिवी शान्ता साग्निना शान्ता सामे शान्ता शुचगोषमयतु अन्तरिक्षकोशान्तम् दत्त्वायुना च तन्मे शान्तगोषु च गोजमयतु यो शान्ता सादित्येन शान्ता सामे शान्ता शुचगोषमयतु पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिर्द्यौ शान्तिर्दिशशान्तिरवान्तरदिशा शान्तिरग्निश्शान्तिर्वायुश्च शान्तिरादित्यश्शान्तिश्चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापश्च ओषधयश्शान्तिर्वनस्पतयश्च शान्तिरजा शान्तिरश्वशान्तिः पुरुषशान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणश्च शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः तयानो शान्त्या सर्वशान्त्या मह्यम् द्विपदे चतुष्पदे च शान्तिम् करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः एह श्रीश्च ह्रीश्च धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा दत्यम् धर्मश्चैतानि तिष्ठन्तमनोत्तिष्ठन्तु मामागुश्रीश्च ह्रीश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा दत्यम् धर्मश्चैतानि मामाहादिषुः उदायुषा स्वायुषो दोषधीना गोरसेनोत्पर्जन्यस्य युष्मेणोदस्थाममृता गो अनु अचक्षुर्देवहितम् पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरते पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् नन्दाम शरदः शतम् मोदाम शरदः शतम् भवाम शरदः शतगो शृणवाम शरदः शतम् प्रवाम शरदः शतमजीदास्याम शरदः शतम् योऽत्यशोर्यम् दृशे य उदगान् महतोर्नवात् विभ्राजमानः शरीरस्य मध्यात् स
समावृषभो लोहित क्षत्रोऽन्यो विपश्यन्मनसा पुनातु ब्रह्मणश्चोदन्यसि ब्रह्मण आणीस्तो ब्रह्मण आवपनमसि धारितेयम् पृथिवी ब्रह्मण मही धारितमेनेन महदन्तरिक्षम् दिवन्धाधार पृथिवी सदेवायदहं वेद तदहं धारयाणि मामद्वेदोऽधिविस्रसतु मेधा मनीषेम विशता गो समीची भूतस्य भव्यस्य वरुद्यै सर्पमायुरयाणि आभिर्गीर्भिर्यततो न ऊनमाप्यायय हरिवो वर्धमानः यदा स्तोतृभ्यो महि गोत्रारुजाति भूयिष्ठभाजो अधति यामा ब्रह्म प्रवरिष्पतन्नो माहासीत् ॐ शान्तिः शीक्षाम्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलम् नामसन्तानः इत्युक्तः शीक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथ तत्संहिताय उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मौ रामः सगोहित इत्याचक्षते अधिलोकौ पृथिवीपूर्वरूपम् योरुत्तररूपौ आकाशः सन्धिः आयुस्सन्धानौ इत्यधिलोकम् आधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपौ आपः सन्धिः विद्युतसन्धानौ इत्यधिज्योतिषम् आधिविद्यौ आचार्यः पूर्वरूपम् अन्ते वास्युत्तररूपौ विद्यासन्धिः जनगोदन्धानौ इत्यधिविद्यम् अथाधिप्रजौ पूर्वरूपम् हितोत्तररूपौ प्रजासन्धिः जननगोदन्धानौ इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मौ अधराहनुः पूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपौ वाक्सन्धिः वादन्धानौ इत्यध्यात्मम् इति मामः सगंहिताः य एवमेतामः सगोहिता व्याख्याता वेदा गीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्ग्येण लोकेन यच्छन्दतामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव मेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् विचर्जनम् जिह्वा मे मधुमत्तमार्णाभ्या भूरिविश्रुवौ ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः तं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना बाणाचिरमात्मनः आसागोऽसि मम गावश्च न पाने च दर्पदा ततो मे श्रियमावह ओमशाम्बजुभिः सह स्वाहा रामायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशो जने सानि स्वाहा श्रेयामपस्य सोऽसानि स्वाहा
प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहन्वयि वृजे स्वाहा यथा प्रवतायन्ति यथामासार्जरम् एवमा ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽधि प्रमाभाहि प्रमापत्यस्व भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो हृदयः सामोहस्मैताम् चतुर्थीम् महाजमस्य प्रवेदयते इति तद्ब्रह्म आत्मा अन्यदेवताः ोरिति वा अयल्लोकः भुव इत्यन्तरिक्षम् उपरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वावदर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः उप इति वायुः सुवरित्यादित्यः इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिदोषि महीयन्ते ओरिति वाचः भुव इति सामानि उपरिति यजोगोषे मह इति ब्रह्म ब्रह्मणवावदर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः वैद्यपानः सुभरिति व्यानः इत्यन्नौ अन्नेन वाव सर्वे प्राणामहीयन्ते वा एताश्चतस्रश्चतुर्था चतस्रश्चतस्रो या हृदयः आयो वेदा सवेद ब्रह्म वेस्मै देवा बलिमा वहन्ति स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः अस्मिन्नयम् पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एषस्तन इवावलम्बते इन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते पाक्यटीरुषकपाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति व इति वायौ सुवरित्यादित्ये इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनतस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः पात्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरम् ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामम् वरानन्दम् शान्तिमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्यो वास्व पृथिव्यन्तरिक्षन्द्योर्दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मा प्राणो ज्ञानोपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रम् मनोवाक्पक् सर्वभागो सक्तस्नावास्थिमज्जा एतदधिविधाय अर्षिरवोचत् पाङ्क्तम् वाजिरनो सर्वम् पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तज्ञस्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमिति दगोदर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः स्मवप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति गोघोषोमिति शस्त्राणि जगोषन्ति ओमित्या
तत्पर्योः प्रतिघरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नः ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति रञ्जस्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च नमश्च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रञ्च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषञ्च स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः इति तपोनित्यः पौरुनिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेदिनागो मौद्गल्यः स्थितपः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठङ्गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि विणगो सवर्जदा सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् वेदमनोच्याजाल्योऽन्तेवासिनमनुषास्ति सत्यं वद धर्मञ्जरा स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियन्धनमाहृत्य प्रजारन्तुम् व्यवच्छे श्रीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भोग्येन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव नान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि यानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि केचास्मच्छ्रेयागोतो ब्राह्मणाः तेषां वयधरेण प्रस्थितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् धिया देयम् धिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विजिगित्सा वा वृत्तविजिगित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षधर्मकामास्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः आख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः आयुक्ताः अलोक्षधर्मकामास्युः तथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एष वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् षण्णो मित्र
पश्यं वरुणः शन्नो भवद्वैयमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मादि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशम् अर्थमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावीत् तद्वक्तारमायीत् आवीन् माम् आयीत् वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ब्रह्मविदा प्रतिपरम् तदेशाभ्युक्ता सत्यम् ज्ञानमनन्तम् ब्रह्म यो वेद निहितं गुहाया परमे व्योमन् सोऽश्यते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्मात् तस्मादात्मनाकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः आपः अभ्यः पृथिवी दिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयम् दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति त्वै प्रजा प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीगश्रिताः अथो अन्येनैव जीवन्ति अथैनदपि यन्यन्ततः नगो हि भूतानाज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते त्वं वैतेन्नमाप्नुवन्ति येन्नं ब्रह्मोपासते नगो हि भूतानाज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते यतेति च भूतानि तस्मादन्नन्ददुच्यत इति स्मात्वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः येनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव य पुरुषविधता अन्वयम् पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः यानो दक्षिणः पक्षः पान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति नन्देव अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते त्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणम् ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति येष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्यात्मा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः येनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधता अन्वयम् पुरुषविदः यजुरेव शिरः दक्षिणः पक्षः नामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा सर्वाङ्गिरतः पुच्छं प्रति
प्रतिष्ठा तदप्येन श्लोको भवति वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति एष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्यात्मात्मा एतस्मात्मनोमयात् अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः येनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयम् पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति ज्ञानै यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च ज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते ज्ञानं ब्रह्म चेत् वेद तस्मात्तेन प्रमाद्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति एष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्यात्मा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः येनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयम् पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः मोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति नेव भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद सन्दमेनन्ततो विदुरिति अस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्यातो नु प्रश्नाः उत विद्वानमुल्लोकम् प्रेत्य स्य न गच्छति आहो विद्वानमुल्लोकम् प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सोकामयता प्रजायेति सदबोधप्यता तपस्तत्त्वा इदगो सर्वमसृजत इदं किञ्च सृष्ट्वा देवानुप्रविशत् तदनुप्रविश्य त्यज्यत्याभवत् निरुक्तम् च निरुक्तम् च निलयनं च निलयनं च विज्ञानम् च विज्ञानम् च सत्यं च नृतं च सत्यमभवत् यदिदम् किञ्च सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति सत्त्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत आत्मानः तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति त्वै तत्सुकृतं रसो वै सः यल्लप्पानन्दी भवति ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेश आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयाति वैष एतस्मिन्न दृश्येनात्मे निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठा भिन्दते अधसो भयं गतो भवति यदा
येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते तस्य भयं भवति त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति ईशास्मात्त्वातः पवति धीरोदेति सूर्यः ईशास्मादग्निश्चेन्द्रश्च प्रत्यर्थवति पञ्चम इति ईशानन्दस्य मीमा गोदा भवति युवास्यात् साधु युवाध्यायकः आतिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ये शतं मानुष आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य जागामहदस्य ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः एकपितॄणाञ्चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य जागामहदस्य ये शतं पितॄणाञ्चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानान् देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ये शतमाजानजानान् देवानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ते ये शतं कर्म देवानां देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य जागामहदस्य ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः एको बृहस्पतिरानन्दः श्रोत्रियस्य जागामहदस्य ये शतं बृहस्पतिरानन्दाः एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ते ये शतं प्रजापतेरानन्दः एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य जागामहदस्य यश्चायं पुरुषे यश्च सावादित्ये एकः स्वय एवं स्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्ग्रामति एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्ग्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्ग्रामति तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्यमनसातः आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् बिभेति कुतश्च नीति एतगोहवनतपति महगोधाधुना करवं किमहं पापमकरवमिति य एवं विद्वानीति आत्मा
आत्मानग्नस्पृणुते उभे एवैष एते आत्मानग्नस्पृणुते एवं वेद इत्युपनिषत् गर्वैवारुणिः वरुणं पितरमुपससार धीः भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति अरोवाच तो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति प्रयान्त्यभिदं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व ब्रह्मेति तदबोधप्यत तपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मे दिव्यजानात् अन्नाद्येव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिदं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति गोहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व वो ब्रह्मेति तदबोधप्यत तपस्तप्त्वा प्राणो ब्रह्मे दिव्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिदं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति गोहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व वो ब्रह्मेति तदबोधप्यत तपस्तप्त्वा मनो ब्रह्मे दिव्यजानात् मनसोऽह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिदं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति गोहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व वो ब्रह्मेति तदबोधप्यत तपस्तप्त्वा विज्ञानं ब्रह्मे दिव्यजानात् विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिदं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति गोहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व वो ब्रह्मेति तदबोधप्यत तपस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्मे दिव्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिदं विशन्तीति सैषा भार्गवी वरुणी विद्या परमेव्यो मन्प्रतिष्ठिता एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या नन्ननिन्द्यात् व्रतौ प्राणो वान्नम् शरीरमन्नदौ प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः अदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् गय एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं
वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या न परिचक्षीता व्रतम् आपो वा अन्नम् ज्योतिरन्नादम् अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् वेद प्रतिष्ठति नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नम् बहुगुर्वीत पृथिवी वा अन्नम् आकाशो अन्नदः पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् नय एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या पञ्चनवसतौ प्रत्याजक्षीता व्रतम् तस्माद्यजाकजा च विधजाम वन्नम् प्राप्नुयात् अराध्यस्म अन्नमित्यजक्षते तत्त्वै मुखतो अन्नगोराद्धम् मुखतोऽस्म अन्नगोराध्यते तत्त्वै मध्यतो अन्नगोराद्धम् मध्यतोऽस्म अन्नगोराध्यते तत्त्व अन्ततो अन्नगोराद्धम् अन्ततोऽस्म अन्नगोराध्यते एवं वेद क्षेम इति वाची योगक्षेम इति प्राणापानयोः धर्मेरि हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायो इति मानुषी समाज्ञाः अथ दैवी तृप्तिरिति वृष्टौ फलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु जातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे आत्ममित्याकाशे प्रतिष्ठेत्युपासीता प्रतिष्ठावान् भवति जन्मः इत्युपासीता महान् भवति मन इत्युपासीता मानवान् भवति नम इत्युपासीता नम्यन्तेऽस्मै कामाः ब्रह्मेत्युपासीता ब्रह्मवान् भवति ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीता पर्येणम् म्रियन्ते द्विषन्दः सपत्नाः पर्ये प्रिया भ्रातृव्याः स यश्चायम् पुरुषेश्चादावादित्ये स एकः य एवं वित् अस्माल्लोकात् प्रेत्या एतमन्नमयमा मानमुपदङ्गम्या एतम् प्राणमयमात्मानमुपसङ्गम्य एतम् मनोमयमात्मानमुपदङ्ग्रम्य एतम् विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्गम्य एतमानन्दमयमात्मानमुपदङ्ग्रम्य इमान् लोकान् कामान्निकामरूप्यनुसञ्चरन् एतत्स
सामगायन्नास्ति हा वोहा वोहा अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः श्लोककृतः श्लोककृतः श्लोककृत् अहमस्मि प्रथमजारुदास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभाये यो मा ददाति स इरेव मा अहमन्नमन्नमदन्तमात्मी अहं विश्वं भुवनमभ्यभवामर्णज्योतिः एवं वेद इत्युपनिषत् अम्भस्य पारे भुवनस्य मध्ये नागस्य पृष्ठे महतो महीयान् शुक्रेण ज्योतिगोदितमनुः प्रविष्टः प्रजापतिश्चर गर्भे अन्तः यस्मिन्निदो सञ्जलितेति सर्वै यस्मिन् देवाधिविश्वे निषेदुः तदेव भूतं तदु भव्यमा इदं तदक्षरे परमे व्योमन् येन वृतं च दिवं महीं च येनादित्यस्तपति तेजसा प्राजसा च यमन्तः समुद्रे कवयो वयन्ति यदक्षरे परमे प्रजाः यदः प्रसूता जगदः प्रसूतितो येन जीवा यजसर्च भूम्या दधेभिः पुरुषान् पशुगुश्च विवेकभूतानि चराणि अतः परन्ना यदनीयसगो हि परा परयन्महतो महान्तम् यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं विश्वम्भुरा तमतः परस्तात् तदेवर्तं ददु सत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम् पूर्तं बहुधा जातं जायमा विश्वं बिभर्ति भुवनस्य नाभिः तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदु चन्द्रमाः देव शुक्रममृतं तद्ब्रह्म तदापः प्रजापतिः सर्वे निमेषा यज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि कलामुहूर्ताः काष्ठाश्चाहोरात्रश्चतुर्वशः अर्धमासामासार्धवः संवत्सरश्च कल्पन्तापः प्रदुघे उभे इमे अन्तरिक्षमथो सुवः नैनमूर्धन्न तिर्यञ्चन्न मध्ये परिचक्रभतो तस्येषे कश्चन तस्य नाम महत्यशः न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैवम् हृदामनि मनसाभिक्लुप्तो येनं विदुरमृतास्ते भवन्ति. பக்தர்களே, வேத பாராயணத்தில் புருஷ சூக்தம், ஸ்ரீ சூக்தம், பூசூக்தம், நீலா சூக்தம், நாராயண சூக்தம் என்கிற பஞ்ச சூக்தங்களையும் கேட்டு புண்ணியம் பெற்றோம். திவ்ய பிரபந்தங்களில் நம்மாழ்வார் அருளிய திருவாய்மொழியை தமிழ் வேதம் என்பார்கள். இன்று அந்த பிரபன்ன கூட்டஸ்தரான நம்மாழ்வாரின் திருநட்சத்திரம் விசாகம். அந்த மதுரகவி ஆழ்வார்
அருளிய கண்ணினுன் சிறுத்தாம்பு என்கிற நம்மாழ்வார் சம்பந்தப்பட்ட பாசுரங்களையும் இப்போது நினைவு கூறலாம். கண்ணினுன் சிறுத்தாம்பினால் கட்டுண்ண பண்ணிய பெருமாயன் இதோ இந்த குறும்பு செய்யும் கண்ணனை ஒரு சிறு கயிற்றால் உரலோடு கட்டி போட்டாளாம் தாயார் யசோதை. தன் மகன் பரபிரம்மம் என்பதை அறியாதவள் அவள். அவனும் தனது தாய்க்கு அடங்கினவன் போல கட்டி கிடந்தானாம். அந்த கண்ணன் தானே இதோ இந்த திருமலையில் நமது திருவேங்கடத்து எம்பெருமான். இப்போது ஸ்தபன திருமஞ்சனம் நடைபெற்ற போது அந்த யசோதை கட்டியது ஒரு சிறு கயிறு. நாம் நமது பக்தி என்கிற கயிறால் எம்பெருமானை கட்டிப்போடுவோம். இதோ இப்போது எம்பெருமானுக்கு துளசி மாலைகளை சமர்ப்பித்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. துளசி பக்திக்கு அடையாளமாக விளங்குபவள். ஸ்ரீ கிருஷ்ண துலாபாரத்தின் போது ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் எடைக்கு நிகராக பொன்னும் மாணிக்கமும் வஜ்ர வைடூரியங்களையும் வைத்தாள் சத்யபாமை. ஆனால் ஒரே ஒரு துளசி தளத்தை பக்தியுடன் சமர்ப்பித்து எடையை சமமாக்கினாள் ஸ்ரீ ருக்மணி தேவி. இதுவே துளசியின் மகாத்மியம். வனமாலி கதீஷாங்கி சங்கி சக்ரீச்ச நந்தகி ஸ்ரீமன் நாராயணோ விஷ்ணுர் வாசுதேவோ அபிரக்ஷத்து என்கிற விஷ்ணு சகசர நாமத்தில் எம்பெருமானை வனமாலி என்று போற்றுகிறார்கள். அந்த வனமாலி என்றால் துளசி மாலையை எப்போதும் தரித்துக் கொண்டிருப்பவர் என்று பொருள் கொண்டார்கள் பெரியோர்கள். அந்த துளசி மாலை பக்திக்கு அடையாளமாக விளங்குபவள். அந்த துளசி மாலையை இப்போது சமர்ப்பித்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. எம்பெருமான் கண்ணன் குழந்தை பருவத்தில் ஆயர்பாடியில் விளையாடி மகிழ்ந்த வனங்கள் எத்தனையோ, அவற்றுள் பிருந்தாவனம் எனப்படும் துளசி வனம்தான் எம்பெருமானுக்கு மிகவும் பிரியமானதாம். அந்த துளசியை பறித்து மாலையாக அணிவதும் குழலில் சூடிக்கொள்வதும் கண்ணனுக்கு பிடித்தமான ஒன்றான். இதைத்தான் துளவமுடி அருள்வரதர் துவக்கிலனை வைத்தேனே என்றார் சுவாமி தேசிகன். இதோ இப்போது அடுத்து தூபகாரத்தி. இதுவரை நீராடிய குளுமையை இந்த தூபகாரத்தின் மூலமாக தணிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அதிலிருந்து கபகமகவென்று வரும் வாசனை எம்பெருமானுக்கு மிகவும் ஓப்பானதல்லவா? இனி அடுத்து காட்டப்போவது தீபகாரத்தி. பக்தர்களே, நான் முன்பே சொன்னது போல இருளை விரட்டி ஒளியை கொடுப்பதுதான் தீபம். இங்கே எம்பெருமான் பக்தர்களாகிய நம்மனதில் உள்ள அந்த அக்ஞான இருளை விரட்டுவதால் தான் அவரை ஜோதி ஸ்வரூபமாக எம்பெருமானை நாம் சேவிக்கிறோம். இதோ இதை அடுத்து எம்பெருமானுக்கு நிவேதனம் நடைபெற்றது. இனி அடுத்து இப்போது எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்கப் போவதை இப்போது நாம் பார்க்கலாம். பக்தர்களே, இதோ இதன் பெயர் அடுக்கு ஹாரத்தி என்பார்கள். இந்த அடுக்கு ஹாரத்தி நட்சத்திர ஹாரத்தி என்று கூட சொல்வதுண்டு. 27 நட்சத்திரங்களும் 27 திரிகளாக அங்கு உள்ளவாம். எம்பெருமானின் அந்த திருமுக ஜோதியின் முன்னே வானத்து நட்சத்திரங்களும் மங்கியது போல இருக்கும் அல்லவா? ஆகவே அந்த நட்சத்திரங்களையே இப்போது ஹாரத்தியாக எம்பெருமானுக்கு காட்டி நட்சத்திர ஹாரத்தி எடுத்து திருஷ்டி கழிக்கிறார்கள். அடுத்து வரப்போவது கும்பஹாரத்தி. இது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. கும்பத்தின் உச்சியில் தீபம் ஏற்றி எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார்கள். பக்தர்களே, விசேஷமான தினங்களில் இந்த கும்பகாரத்தை சமர்ப்பிப்பது முக்கியமாகும். அந்த சுந்தராங்க வதனத்திற்கு எவ்வளவு திருஷ்டி கழித்தாலும் போதாதுதான். ஆகவேதானே பெரியாழ்வாரை பல்லாண்டு பாடினார். பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி 100,000 மல்லாண்ட திந்தோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு அடியமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி 1000 பல்லாண்டு வடிவாய் நின்வல மார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு வடிவாய் ஜோதி வலத்துறையும் சுடராழியும் பல்லாண்டு படைவோர் புக்கு முழங்கும் அப்பாஞ்சசன்னியமும் பல்லாண்டே என்று எம்பெருமானுக்கு பல்லாண்டு பாடினார் அல்லவா? நாமும் இந்த திருவஞ்சன சமயத்தில் எம்பெருமானுக்கு பல்லாண்டு பாடி மகிழ்வோம்.
सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिम् विश्वतो हित्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषयेवेदगो सर्वम् यद्भोजम् यच्च भव्यम् उदारतत्त्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अदोऽध्यायागश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतन्धिरे त्रिपादोऽध्वपुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः तदोवित्तं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्माद्विराजदायत विराजो अधिपूर्वः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथ पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमदन्वत वसन्तोऽस्त्यासीदात्यम् ग्रीष्मयद्मशरद्धरिः सप्तास्त्यासन्परिधयः सप्तसमिधः कृताः देवायज्ञम् दन्वानाः अबध्नन् पुरुषम् वशम् त्रयज्ञम् वैरक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवायजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतम् बृहदाज्यम् अयोगस्तागश्चक्रेवायं या आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः रजस्वानिरज्ञिरे छन्दानोभिरज्ञिरे तस्माद् यदस्तस्मादजायत तस्मादश्वाराजन्त ये तेजो भयादतः गावो हदग्निरे तस्माज्जाता अजावजः यत्पुरुषं यदधुः तदिधाव्यकल्पयन् मुखङ्गिमस्य गौबाहो कावोपादामुच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमादीत् बाहोरायण्यः कृतः पुरोददस्य यद्वैश्यः पद्भ्राहोत्रो अजायत चन्द्रभामनसो जातः चक्षुर्यो अजायत पर्यात्या अनन्ताय सर्वस्तमातिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याद्ये सर्वस्य नित्ये सर्वमेव आप्नोति सर्वं जयति हरिः
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ